अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद विवेक कुरैशी है और मैं बगुड़ा शहर से बोल रहा हूँ और मैं फ़िलहाल औबाद के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं थिंक टैंक का वॉलंटियर हूँ और इसके अलावा भी मैं यहाँ पर अ, जो क्लास होता है ट्यूटोरियल में वहाँ क्लास लेता हूँ। तो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है मुजम्मिल क्लाइमेट वाला। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उन्हीं का लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो सर प्लीज़ आप पहले में आपका परिचय हम लोग के सामने दिए, आपका इंट्रोडक्शन हम लोग के सामने दिए Uh, सर। Thank you, Vivek, uh, for fixing the interview with me. मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जो तुमने मांगे मैं ज़रा दे दूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन है और मैं चिटगांव बांग्लादेश से बिलोंग करता हूँ। एंड बांग्लादेश चिटगांव बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा शहर है। You can say the one of the biggest city in Bangladesh, and it also the financial or business capital of Bangladesh. This is one of the beautiful city where sea and hills combines together. And I I got my birthplace and my childhood spent in Chittagong. I love this city, and also after you know, and also I am working in What Helpers. What Helpers is a USA based organization, and as Vivek, you are also part of the What Helpers, so you know that our work is very great than our imagination. We work for the people, we work for the foreign communities, and we work for the betterment of the mankind. I'm very fortunate to be the part of Forward Helpers, and I'm also very glad to be the uh, child of Bangladesh. Thank you, Vivek. This is my short introduction about my city and हाँ organization. हाँ, थैंक यू सर। जैसे आपने बोला आपके चट्टग्राम के बारे, और चट्टग्राम असल में बहुत बांग्लादेश का एक बहुत अ, अच्छा सिटी है जहाँ पर सभी मिलता है और बहुत कुछ वहाँ से माने सबसे बड़ा बोला जाता है बांग्लादेश सिटी में। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा Hmm. फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जैसे आपने बोला जो आप अवध में वर्क करते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं जो अवध हेल्पर्स ये क्या है और अवध क्या है और यहाँ पर कौन-कौन सी प्रोजेक्ट चलती है और ये वाला का कौन-कौन सिटी में अभी ये वाला रनिंग है, कहाँ-कहाँ ये वाला चल रहा है? Thank you for asking the question about Overhelpers. Uh, actually, Overhelpers is not just an organization. This is an hope for the forgotten communities living in the Bangladesh. Overhelpers formed in 2004 by its pioneer Anwar Khan Akmal sir. When he visited Rangpur city, so he see the scattered position or situation of the living Biharis in the camps. So he is very disheartened seeing the camps people living in such a heinous condition. So he think that as his birthplace is Rangpur, so he think that he need to do something for the people of this forgotten communities. And back in early 2000s, the basic human needs like um, education, residence, and water and the other basic needs. We cannot. The people living in here are deprived of their facilities. So he thought that he should to do something for this forgotten communities. He firstly initiated to help a family with his $70,000. But after seeing the whole condition, he thought that not one family, all the camp resident need the help to be mixed with the mainstream community or to be uplifted or develop themselves. So he started the journey of Uber Helpers then from 2004 to now. This is the 21 years of Uber Helpers is running, and we are now working in the 9 cities in Bangladesh. We have many projects that cannot be described in a short interview. That we are our focused project is education.
we mainly focus for the education in our all the cities. All the 9 cities we have schools, preschools, charity programs, and water sanitation, and digital learning, and the many projects we are running in Bangladesh current now. So I think this projects is for the forgotten communities, for their upliftment and for their development, that they can mix with the mainstream community, and they can live with raised head. So I think our work is not trivial. This work has a huge impact in the communities living in Bangladesh. Uh, and also, as a part of Robot Helpers, I am very fortunate to be to be surveyed and see how the projects in Bangladesh. So I think this is Robot Helpers um, take a important roles to upliftment and development of the communities living in Bangladesh. This is one of the largest organization now, and we are very lucky that we have this kind of organization that we can work for the human. Thank you, Vivek, for your nice question. ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे अभी आपने बोला ओबट के बारे में बहुत कुछ बोला, तो ओबट में आपका मेन वर्क क्या है, और आप वहाँ कौन आप वर्क कर रहे हैं, और मूल आपका दायित्व मैंने क्या है आपका, ये हमारे सामने एक्चुअली थोड़ा बोलते हैं। मैं तो ओबट में 2008 साल से ही काम कर रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ का प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, और मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज ऑल द प्रोजेक्ट्स इन द चिटागोंग। And Chittagong has the largest project of Robot Helpers in Bangladesh, and we have the largest beneficiaries. So my work is to maintain beneficiaries, their staff, and all other doing activities in Chittagong. So मैं बेसिकली अभी चिटागोंग का हर प्रोजेक्ट का सुपरवाइज करने का मेरा अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं जब ओवर हेल्पर्स ज्वाइन किया था, तब मैं ओवर हेल्पर्स एक मैथमेटिक्स टीचर के हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था, और तब से लेके अब तक मेरा जर्नी ओवर्ट के साथ ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ओवर्ट एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जो स्टाफ से उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है। जैसे हम लोग सिर्फ रेहान एआई स्कूल एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग हो, खान अकेडमी प्रोग्रामिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, हर तरह का फैसिलिटीज़ है जो अपना स्टाफ लोग को देने की कोशिश करते हैं, या साथ साथ हमारे बेनिफिशियरीज लोग को भी देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुद को इम्प्रोवाइज कर सके, खुद को आगे ले आ सके। तो मैं भी उन सब का एक एग्जांपल हूँ, जो मैंने टीचर से शुरू किया था, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सॉरी, मेरा माइक्रोफोन म्यूट हो गया था। मैंने जो बोला सब आया, मैंने कि से जी जी जी, अभी थोड़ा देर जी। पहले ही स्किप हो गया, ओके कोई बात नहीं ओके सर। ओके। जी सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू विवेक। सर। ठीक है, आपने हाँ जैसे बोला हम लोग के जो आप जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हिसाब से काम करते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट का मेन आपका वर्क है। तो जैसे आप पहले क्वेश्चन में मुझे बताया जो आपका मतलब का ओबट हेल्पर्स का मेन टारगेट है एजुकेशन का ऊपर। तो एजुकेशन के ऊपर में आपका क्या थीम है, आपका क्या वर्क है, जो एजुकेशन आपसे आप जब प्रोजेक्ट ऑफिसर हिसाब से ज्वाइन किए तो उसका बाद से आप वाला में कैसे अवदान रखे যে এলাকা আরো उन्नति करा जाए, ये लोग और अच्छा करा जाए, ये ला लेके हम लोग को कुछ बोलते हैं। Actually, education is the basic need of human life. Only education change the whole society, whole community, and the whole nation. If you see the Europe and the America, all the established countries or developed countries has the great impact of education.
they actually work only for their education. Actually वो लोग अपना एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं, उन लोग का R&D के ऊपर इतना ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं जे आज उन लोग का देश, उन लोग का कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा उन्नत है। तो ये एजुकेशन है जो एक इंसान को, एक कम्युनिटी को चेंज कर सकता है। सो मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर होने के अलावा भी मैं एक टीचर था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत फजल व करम है जो मुझे एजुकेशन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है। तो मैं समझता हूँ जो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा मैंने कोशिश किया है जो हम लोग का जो भी स्टूडेंट रहे जो क्लास 1 से या प्री स्कूल से आ रहे, तो उन लोग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए, चाहे उन लोग से बेसिक फाउंडेशन तैयार होता है। जब फाउंडेशन अच्छा हो तो बिल्डिंग भी बहरहाल अच्छा होता है। सो हम लोग मेरा फोकस हमेशा रहता है जब हम लोग को प्री स्कूल क्लास 1 2 3 प्राइमरी सेक्शन जो बोलता है, वो प्राइमरी सेक्शन बहुत अच्छा हो। अगर प्री स्कूल और प्राइमरी सेक्शन अच्छा हो, बच्चे के बेसिक अच्छा हो जाता है, और जो बच्चे के बेसिक्स अच्छा होता है उन्हें यार सामने में बहुत ज़्यादा हेल्प की दरकार नहीं पड़ती, वो अपने से सब कुछ कर सकते हैं। सो मैं सोचता हूँ कि एक स्टूडेंट के बेसिक हमेशा अच्छा होना चाहिए, और मैंने हमेशा इस चीज़ में काम किया कि हर बच्चे का बेसिक्स बहुत अच्छा हो। जी सर, आपने हाँ बिल्कुल दीदी। सही कहा, क्योंकि मैंने छोटा से ही बच्चे सीखते हैं और बच्चा पहले उसको जैसा एजुकेशन मिलता है धीरे-धीरे आस्ते वो इम्प्रूव होता है थोड़ा-थोड़ा उसका मुद्दा हम लोग देखते हैं जो चेंजेज़ आते हैं, वो सामने भर-भर के पहले से जैसे करके पढ़ता है उसके बाद आके उसका मेंटालिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा कहा सर आपने। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, जैसे आप बोला जो आप पहले में मैथ टीचर है, तो बहुत जन सो मैथ से बहुत डरते हैं। तो आपका साथ ऐसा कुछ हुआ एक दिन स्पेशल कोनो दिन था जो आपको माने सारा जीवन याद रहने का तरह एक मुहूर्त था कोनो, तो हमारे साथ शेयर करते? हाँ, ठीक है, थैंक यू विवेक। एक्चुअली मेरा तो ये यादगार बहुत मोमेंट था, बट मेरा भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने हर मोमेंट को भूल गया। तब भी कुछ मोमेंट हमेशा यादगार रहता है जो आदमी के मेमोरी में रह जाता है। एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स होने का स्टूडेंट होने के पीछे में एक्चुअली जितना मेरा कंट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा हमारा जो गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसका उसका उसके इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 6 सब्जेक्ट के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था मैथमेटिक्स के लिए। तो उसके बाद से मैंने अपना करियर मैथ टीचरशिप से शुरू किया था। पर उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है टू डेवलप योर ब्रेन। और आपको आप जो असल में चाहे जो आपका ब्रेन हर वक्त फंक्शन करते रहे, तो आपको हमेशा मैथ करते रहना चाहिए। जिसका मैथ अच्छा होता है वो हर जगह में अच्छा होता है, उसको उसे बेसिक्स भी अच्छा होता है, उसका हर ज्ञान अच्छा होता है। तो ये ऐसा एक जिनिस है, एनालिटिकल जिनिस है जो आपके ब्रेन का धार बढ़ाता है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और एक क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, मैंने इसमें माइंड से ड्रॉप हो गया। ना सर, मेरा यही क्वेश्चन ही था जी, आपका एक बहुत अच्छा कोई स्पेशल दिन था जिसे आप एक बार अच्छा, यादगार हो स्पेशल गए दिन, आपका? हाँ, जी। सॉरी, स्पेशल दिन, यादगार दिन। एक्चुअली यादगार दिन तो बोला जाए उस वक्त जब मैं क्लास 5 में था। तो अनएक्सपेक्टेडली मतलब मेरा पोजीशन क्लास में मैंने 8th था, मैं मेरा रोल नंबर 8 था। बट नो वन एक्सपेक्टेड दैट आई कुड बी द फर्स्ट वन इन क्लास 6। सो जब मेरे हेड टीचर या सब टीचर लोग आते थे उस वक्त, 2005 की बात है। तो वो लोग आते थे रिजल्ट देने के लिए। तो जब रिजल्ट देने आ जाए, दे अनाउंस दैट आई एम द फर्स्ट, आई एम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सब जब मेरे लिए ताली बजा रहे थे, तो वो दिन तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत खास था। तो वो दिन आज तक मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत देर बाद जना रहा हूँ लेकिन अभी भी सही है। ओके, थैंक यू सर। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये था, जैसे आप अभी रेहान टीचर इंस्टीट्यूट का साथ जुड़ा हुआ है,
तो ये वाला कैसे करके आप यहाँ ज्वाइन किया और क्यों आप ज्वाइन किया यहाँ, ये हमारे ये साथ ला शेयर तुम करें। जैसे करके ज्वाइन की, मैंने भी ऐसे करके ज्वाइन किया बट हाँ this is the this is completely contribution of Word helpers that we put our name for the shortlisted and we were selected to conduct the class in Rehan AI Institute. Um, so uh, we मैंने मैं हमेशा पैशन था जो मुझे एआई सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा मुझे कुछ न कुछ जानते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि रेहान एआई इंस्टीट्यूट एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है जो वर्ड हेल्पर्स ऑफर्स कर रहा है, तो मुझे ये लेना चाहिए। तो इसी मंसूबे से मैंने रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्लास अच्छी तरीके से चल रही है, मुझे अच्छी लग रही है क्लास। इंटरव्यू हो रहा है जिसकी वजह से मेरा मुंह का जो इनर्शिया है वो कट रहा है। टेड जी टॉक चलता है, कैनवा पोस्ट, कैनवा में वीडियो बनाना, ये सब हमारा प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा इंशाल्लाह। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। ताकि अच्छे से सीख सके और हम लोग का जो बच्चे लोग हैं उन लोग को भी सिखा सके। और यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट हम लोग ऑलरेडी 10 या 20 जनवरी सॉरी 20 बच्चे के बेस भी स्टार्ट किया जो रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट से इंस्पायर्ड होके हम लोग का मैंने हम लोग जो कर रहे हैं, मैं हूँ, हमारा चिरांग का टीम में शारमीन है, हमारा अफरोजा और शमा है, हम लोग सब मिल के एक क्लास कर रहे हैं जिससे मैंने एज ए पायलटिंग प्रोग्राम जो बच्चे लोग हम लोग जो सीख रहे हैं वो बच्चे लोग को आगे डिलीवर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक बेस हो रहा है, ये बेस से हम लोग इससे और दूर तक ले जा सकेंगे इंशाल्लाह। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने और मेरा भी मकसद यही था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया क्योंकि नया नया जो कुछ सीखने को मिलता है वो सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह में हाँ कौन जगह जरूर काम आ सीखना जाए। चाहिए, जी जरूर सर, सीखना इसलिए मैंने चाहिए। ज्वाइन किया। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये था, जैसे आपने बोला जो यहाँ पर आप कैनवा पोस्ट करें, स्टोरी पोस्ट करें, फेसलेस वीडियो भी बनाएं, तो इस सब में आपको बहुत इंटरेस्टिंग था एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत आसान था या एक बहुत डिफ़िकल्ट था, तो हमारे साथ शेयर करते सर। एक्चुअली एक्चुअली रेहान मैंने रेहान एआई इंस्टीट्यूट में आने के बाद बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिल रहा, बट बहुत कुछ है जो सब मैं पहले से ही मुझे नॉलेज था। जैसे चैट जीपीटी के बारे में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज था, और उसके बाद जो कैनवा के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नॉलेज था। मैंने कैनवा से इससे पहले भी मैंने पोस्ट पोस्ट डिज़ाइन करना, बैनर डिज़ाइन करना या वीडियो एडिटिंग करना ये भी मुझे मालूम था। बट यहाँ पर ही जो मैंने ये सब मेरे लिए एकदम ईजी था, कैनवा पोस्ट, उसके बाद चैट जीपीटी से जो सब टास्क मिलता था, स्टोरी पोस्ट, ये सब मेरे लिए एकदम ईजी था। बट मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट था वो था इंटरव्यू देना। मुझे इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं है, और खास करके तब जब सब इंटरव्यू सेम सेम टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो आज तो डिफरेंट क्वेश्चन हुआ देख अल्हम्दुलिल्लाह, बट जब सेम टाइप हर हमेशा क्वेश्चन होता तो इंटरव्यू में मैंने वो इंटरव्यू में मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने फर्स्ट टाइम जब एक इंटरव्यू दिया था तो वो सिर्फ मैंने मुझसे सवाल कर रही थी, मैंने जब उससे कुछ बोला था वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसके बाद से मुझे लगा कि इंटरव्यू एक्चुअली एक बकवास है, ये इसे नहीं करना ही अच्छा है। पर आफ्टर 2-3 इंटरव्यू के बाद आज आज तुम्हारे साथ इंटरव्यू के बाद मुझे लगा नहीं, इंटरव्यू भी यदि अच्छा होस्ट हो तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है। सो दैट अभी इंटरव्यू मेरे लिए एक था, उसके बाद था आपका तुम जाके जो हम लोग क्या करते हैं याद नहीं आ रहा, बताओ तो जरा और क्या क्या करते हैं हम लोग रिहाई इंस्टीट्यूट में। जी सर, जैसे कैनवा मैंने बोला और फेसलेस भी हम लोग करे कैनवा हैं, पोस्ट, स्टोरी हाँ पोस्ट, फेस प्लस वीडियो ये भी ठीक है। उसके बाद टेड टॉक भी मेरे लिए टिकटॉक। नया था। हाँ टेड टॉक भी मेरे नया था। मैंने टेड टॉक्स बोलते मैं हमेशा वही हिंदी या बांग्ला सुनता था, जेहेतु मैं हिंदी भी अच्छा समझता हूँ, बांग्ला भी अच्छा समझता हूँ। तो वही टेड टॉक्स जो टेड टॉक्स मेरे लिए भी नया था, जो इसके लिए एक रिव्यू रिकॉर्ड करना। बट पहले पहले रिव्यू रिकॉर्ड करने में बहुत सारा भूल होता था। मैं रिव्यू रिकॉर्ड मैंने कभी भी मैं रिव्यू रिकॉर्ड करके वो रिव्यू को दूसरा बार नहीं देखा। रिव्यू रिकॉर्ड हो उसे साथ साथ अपलोड कर दिया। ये वाला रिव्यू रिकॉर्ड हुआ वाला देखने से बस वाला रिव्यू अपलोड करने का दिल नहीं करेगा। इसलिए मैंने अपने जितने भी रिव्यू रिकॉर्ड किए मैंने आज तक कभी हुआ रिव्यू देखा नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड किया उसे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया बस खत्म। तो ये भी एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। तब भी
Uh, that's a great uh, experience for me. जी सर, सही बोला आपने। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि जब नया कुछ सीखते हैं तो पहले में वाला बोरिंग लगता है जे मैं नहीं कर सकूँगा ये वो। लेकिन धीरे-धीरे मैंने भी जब पहला इंटरव्यू करा तो बोला जे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आंसर कर रहा हूँ। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन जब 3-4 गो इंटरव्यू हो चुका, हाँ, तब तो अच्छा ही लगने लगा जे हाँ, ठीक से अभी बोल सकता हूँ, कैसे करके ये इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए, ये भी मैं जान गया हूँ। और अभी वाला बहुत ही ईजी एक लगे जे बहुत ईजी भावे हम ये वाला कर लेने सकते हैं। ओके आस्ते सर। आस्ते हो जाएगा। जी सर, आस्ते आस्ते आरो बढ़ेगा, आरो सामने जाके आरो बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। ओके और सर। कुछ क्लास बाकी है, हाँ। कुछ क्लास में इंशाल्लाह हम लोग और कुछ अच्छा सीखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी सर, इंशाल्लाह आरो नया कुछ तो सीखेंगे हम लोग। ठीक है सर। हम्म, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ बांग्ला में है। তো मैं ये বাংলা में कर रहा हूँ যে আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, আপনি এখন বর্তমানে প্রজেক্ট অফিসার হিসেবে আছেন। তো আপনার ভবিষ্যতে আপনার শিক্ষার্থীদের জন্য কিভাবে এটা প্রয়োগ করবেন? যেমন আপনি এখন যে পজিশনে চলে আসছেন, শিক্ষার্থীরা ওই পজিশনে একদিন যাবে বা ওর চেয়েও আপনার চেয়েও ভালো কোনো পর্যায়ে যাবে। তো আপনি কিভাবে এটি ইনশাআল্লাহ। প্রয়োগ করবেন যাতে তাদের জীবনটা আরো উন্নত হোক, আরো ভালো হোক? এটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন। আমরা অ্যাকচুয়ালি শুধু আমি না, আমাদের এখানে যতজন স্টাফ আছে, আমাদের সাথে যতজন কাজ করে, সবাই সবাই চেষ্টা করে যে আমাদের যে স্টুডেন্ট গুলো আছে তারা আমাদের চেয়ে আরো এগিয়ে যাক, আমাদের চেয়ে আরো ভালো করুক। আমরা সবসময় চাই যে আমাদের স্টুডেন্ট গুলো ইউনিভার্সিটিতে পড়ুক, তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, চুয়েট এগুলোতে পড়ালেখা করুক। তো আমরা আমাদের জ্ঞানকে সবসময় ওইভাবে প্রয়োগ করি। আমাদের শিক্ষকরা আছে, আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিম আছে এবং আমাদের সাব ম্যানেজমেন্ট টিম আছে, সবাই সবসময় তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে যাতে তাদের জ্ঞানটাকে তারা সর্বোচ্চটুকু ব্যবহার করতে পারে। আমরা শুধু বইয়ের পড়ালেখা সীমাবদ্ধ থাকি না, আমরা বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করি তাদেরকে যাতে ডিজিটাল লার্নিং এর সাথে অ্যাড করতে পারি, তাদেরকে আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে পারি, তাদের সাথে আমরা কথাবার্তা বলতে পারি, তাদেরকে আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাড করতে পারি, তাদেরকে আমরা যাতে নতুন নতুন ডাইভার্সনে যুক্ত করতে পারি, যাতে তারা একঘেয়েমি না থাকে এবং দুনিয়া সম্পর্কে দুনিয়া সম্পর্কে যাতে একটা ভালো জ্ঞান থাকে। তো এগুলো আমরা সবসময় আমাদের জ্ঞানটা সর্বোচ্চ প্রয়োগ করার চেষ্টা করি যাতে আমাদের বাচ্চাগুলো একটা ভালো অবস্থানে যেতে পারে, একটা ভালো মানের শিক্ষা অর্জন করতে পারে। হ্যাঁ বিবেক, জি স্যার, অনেক বলুন। হ্যাঁ, ভালো কথা বলেছেন। এবং আমি দোয়া করি যে আপনারা সবাই টিম ওয়ার্ক করতেছেন এবং আপনাদের টিমের আপনাদের যে ইচ্ছা আছে ওটা পূরণ হবে, আর বাচ্চাদের যে পর্যায়ে নিয়ে চাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ একদিন ওটা সফল হবে। ঠিক আছে স্যার, এখন আপনার থেকে কিছু আমার পার্সোনাল কোশ্চেন। সেটা হলো যে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা কে? আমার সেটা জীবনের যদি আমাদের সবচেয়ে সাথে বড় প্রেরণা জি স্যার। অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমি যখন মনে হয় 6-7 এ ছিলাম তখন একটা কবিতা পড়েছিলাম যে সবার আমি ছাত্র, শিখছি দিবানা রাত্র, আকাশ থেকে শিখি বিশাল হওয়ার, নদী থেকে শিখি প্রবাহমান থাকার। তো তো আমি মনে করি যে এই পৃথিবী হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বড় রোল মডেল, যে আমি সবার থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারি। আমি আকাশ থেকে শিখি যে কিভাবে বিশাল হওয়া যায়, গাছ থেকে শিখি কিভাবে মানুষের শীতল রাখা যায়, নদী থেকে শিখি কিভাবে সব দুঃখ দুর্দশা ভুলে ভুলে প্রবাহমান থাকার। ঠিক আছে, তো এগুলো আমি সবসময় প্রকৃতি থেকে শিখছি এবং প্রকৃতি আমাকে সবসময় শেখাচ্ছে। তো আমি মনে করি যে প্রকৃতি হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় রোল মডেল। এছাড়া এছাড়া আমি মনে করি যে আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্ট যিনি ছিলেন, উনি আমার জন্য একজন বড় রোল মডেল এবং ওভার হেল্পার্সে আমাদের যারা সিনিয়র আছেন তারা আমাদের জন্য একজন রোল মডেল। একজন আনোয়ার খান আছেন, তিনি সবার জন্যই রোল মডেল। আমরা যারা ওভারটে কাজ করি তারা তার পার্সোনালিটি থেকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত, তো তিনি আমার জন্য একজন রোল মডেল। তো বলা যায় যে যে ভালো কাজ করে সে আমার জন্য রোল মডেল। জি স্যার, অনেক সুন্দর কথা বলেছেন আপনি স্যার। আহ, এখন স্যার আমার নেক্সট কোশ্চেন আপনার কাছে যে স্যার আপনার স্বপ্ন কি? যদি আপনার গোল আমার একটা স্বপ্ন আছে তো আমার স্বপ্ন গোলটা আমাদের সাথে আমার শেয়ার করুন। স্বপ্ন আমার স্বপ্ন আমার যা স্বপ্ন ছিল এখন আর ওই স্বপ্ন অর্জন করা সম্ভব না। মানুষের স্বপ্ন থাকতে হয়,
ছোটবেলা থেকে যখন পর্যন্ত সে এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করে তখন পর্যন্ত তার স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য সেই সময় থেকে কাজ করা দরকার। এখন যদি আমি চাই আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, আসলে আমি কিন্তু পারবো না ইঞ্জিনিয়ার হতে, আমার পক্ষে সম্ভব না ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। তো আমার এই স্বপ্নটা অযথা স্বপ্ন। তো আমি যে স্বপ্নটা দেখেছি আমার বয়স 15 বছরের আগে থেকে, সেটার জন্য যদি আমি কাজ করতাম, ওই স্বপ্নটা যদি আমি ওই কি বলে ওই স্বপ্নটা যদি আমাকে ঘুমাতে দিত না, তখন আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে পারতাম যে আমি আমার স্বপ্নটা পেয়েছি। এখন আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি যাতে একটা ভালো কমিউনিটি গড়তে পারি, আমাদের যে কমিউনিটিকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সেই কমিউনিটিকে যাতে একটা ভালো অবস্থানে দেখতে পারি, এবং সেই কমিউনিটিও যাতে ওভার হেল্পার্সের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে যাতে তারা নিজেকে একটা ভালো পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এখন আমার সেই স্বপ্নই আমার মধ্যে কাজ করে। জি স্যার, ইনশাল্লাহ আপনার যে ড্রিম, আপনার গোল আছে, স্বপ্ন আছে, সব একদিন পূরণ হবে ইনশাল্লাহ। ঠিক ইনশাআল্লাহ। আছে স্যার, আমার শেষ লাস্ট কোশ্চেন আপনার সাথে, যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় খাবার কি? আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার, আমি মনে হয় দুনিয়া যত হালাল জিনিস আছে সবকিছুই খাই। আমার খাওয়ার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ কোনো বাছ বিচার কিছু নাই। আমি সবকিছুই খাই। অ্যাকচুয়ালি আমার একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমি মুখের টেস্টটা বুঝতে পারি না যে কোন খাবারের টেস্টটা কেমন। তাই আমি সবকিছুই খেয়ে ফেলি। ভালো হলে ভালো, খারাপ হলেও সমস্যা নাই। সো প্রিয় খাবার বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি বলাটা ইম্পসিবল যে আমার প্রিয় প্রিয় খাবারটা কি। ঠিক আছে, তাও স্যার সবার একটা থাকে, একটা খাবারের প্রতি একটা আলাদা ইন্টারেকশন থাকে, ওরকম যদি আপনার কোনো কিছুর না, আমার প্রতি খাবারের আছে। প্রতি বেশি ইন্টারেকশন, আমার আলাদা না, আমার বেশি ইন্টারেকশন খাবারের প্রতি। আমি আচ্ছা। যেটাই দেখি সেটাই আমাকে খাওয়ার ইচ্ছা করে। তো খাওয়া বলতে খাওয়া বলতে আমি সবকিছুই খাই, সবকিছুই আমার ফেভারিট। বাট স্পেসিফিকলি আমি বলতে পারতেছি না। যখন আমি পিজা খাই তখন আমাকে পিজা ভালো লাগে, ওই সময়ের জন্য আমার পিজা ফেভারিট। যখন আমি ভাত খাই তখন আমার থেকে ভাত আমার জন্য ফেভারিট, কারণ ভাত আমাকে ভালো লাগে। এছাড়া ওই মানে কেউ আমার আম্মা যখন পাক করতো, আমার আম্মা যে ডিশগুলো পাক করতো সেটা আমার ওই সময়ের জন্য সেই জিনিসটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট ছিল। তো খাবারের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সবকিছুই আমার ফেভারিট। আমি এটা কখনো মানে ওই ভাবতেই পারি না যে আমার একটা খাবার ফেভারিট হবে। সব খাবারই আই সি দ্যাম ইন দ্য সেম অ্যাঙ্গেল। বিবেক, তুমি আটকে গেছো।